Hi, Hi. My name is Ketan, and I'm here to just give you the training of AZ104. I think the HEMA has given you the course content and all the basic idea No, about. no, No, no. yeah. So before we start, can we have some little your technical background from which field you are, both of you are? Yes. Wait, wait. Yeah. Hi, I am Purvesh. Hello, Pravesh. Yeah. We are both. I am Surana Infotech as a managing director position, and my colleague is Hiren Bawadilia. Right now, he's working in iOS developer. iOS developer. Yeah. Yes. And So, yeah. we are moving the Azure. Okay, so both you are in working as an iOS developer. No, No, I no. am not developing. So you are as a He is a manager. Yeah, he is I a am just MDS. managing. Yes. And the Surana Infotech, and I am the developer at the as a iOS developer in the Surana Infotech. Okay. So what we are going to do in covering in this class, that we are going to cover the AZ104 courses. So if Hema have shared you the content, then I will show you some contents what we are going to cover in this. Okay. She didn't share me anything. Okay, but, I will share you that. Okay. Okay. So let me see. Because the content has, because recently the Microsoft changed its course content. So we will always prefer to go with the latest one. Okay. Just give me a minute. Can we talk in Hindi? If you are comfortable, then I can. ठीक है, Yeah. कर सकता हूँ. Yeah. Yeah, boss. हिंदी में बोले better. I don't have. Yeah. Okay. Please let me know once my screen is visible to all of you. Okay. Yes. Now it is visible. Okay. So हम लोग AZ104 कवर करेंगे. That's a basic for cloud. जिसमें हम लोग ये सीखेंगे कि भाई Azure होता क्या है, Azure की सर्विसेज कौन सी होती है, and how we create and manage and troubleshoot the services. The basic one. First of all, like अगर आप कुछ करना चाहते हैं, then you have to have some basic idea about that thing. आपको उसके बारे में बेसिक पता होना चाहिए. Azure क्लाउड के बारे में, क्लाउड होता क्या है, कौन सी सर्विसेज होती है, like IaaS, PaaS और SaaS, three different models. So उसमें आता है different models में फिर IaaS और PaaS that come under the Azure. जिसमें आप Azure में ये सीखो कि हमारा IaaS PaaS, जैसे आप लोग जैसे you are from the iOS, so you might have to work on like APIs वगैरह आप create करते हो, APIs host कैसे करते हैं, वेब एप्लीकेशन होस्ट कैसे होती है, वर्चुअल मशीन कैसे बनते हैं, हमारी कनेक्टिविटी मान लेके बहुत सारे आजकल के डेट, क्योंकि नाउ डेज हर एक ऑर्गेनाइजेशन स्पेशली इन दिस लॉकडाउन, हर कोई ऑर्गेनाइजेशन अपना इंफ्रा दे आर मूविंग ऑन क्लाउड. सो उनकी डिपेंडेंसी जितनी कम हो सके ऑफिस पे. सो हाउ कैन वी दिस बी पॉसिबल, दिस कैन बी पॉसिबल थ्रू द क्लाउड. इसके लिए हमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, बहुत सारे फीचर्स हमें क्लाउड देते हैं, like pay as you go on like hybrid models and what RI reserve instances. तो ये बहुत सारे फीचर्स है जो क्लाउड देते हैं हमारे. Can I request? Can you open your video? You want to see my video? Yeah. It's better to talk like that. Okay. Because we're working from home, so it doesn't have so. No problem, Okay. sir. Okay. Yeah. That's Is it? Yeah, it's Okay. great. Okay. Yeah, please continue. Yeah, I'm sharing some PowerPoint slides. So Purvesh and Hiren, is my screen is visible to you? yes. So this is the agenda. That's a basic outline what जो हम लोग cover करेंगे. What introduction, then implementation, network. क्योंकि network एक बहुत important parts होता है. If you are planning for something, like अगर आप लोग application host करते हो, तो आपकी web कहीं और होती है, database कहीं और होती है, API कहीं होती है. तो बेसिकली इन सब चीजों में आपको डिपेंड करना पड़ता है कि हमारी कम्युनिकेशन सही हो. अगर जब तक आपको कम्युनिकेशन बनेगी नहीं, तब तक आपको ये क्लियर नहीं हो पाएगा कि भाई आपकी एप्लीकेशन चलेगी नहीं.
you must be very aware about this. Like आपकी API को आप hit नहीं कर पा रहे हो, then आपकी application चलती नहीं है. So first of all, we have to figure out how to troubleshoot that and how you कैसे आप इस नेटवर्क को बनाते हो. That's called the implementation of networking. जो हर एक किसी भी चीज का एप्लीकेशन का एक बेस होता है नेटवर्किंग. जब तक आपका प्रॉपर नेटवर्क नहीं होगा कोई आपकी एप्लीकेशन चलेगी नहीं. देन आता है हमारा वर्चुअल मशीन्स. वर्चुअल मशीन से हमारा कि जैसे आप कोई एप्लीकेशन होस्ट कर रहे हो, एपीआई होस्ट कर रहे हो या कोई सर्विसेज होस्ट कर रहे हो, तो वो सब कहाँ होस्ट करोगे? वर्चुअल मशीन पे होस्ट करोगे. फिर एक और मशीन बन गई, फिर उसको मैनेज कैसे करते हैं, उसको बैकअप कैसे लेते हैं, उसको फिर मेंटेनेंस कैसे करेंगे, उसकी पैचिंग कैसे होगी, उसके और भी अदर्स काम कैसे होंगे, वो सारी चीज वहां से होते हैं. देन आते हैं स्टोरेज. स्टोरेज में क्या होता है कि जैसे बहुत सारी चीज होती है, जैसे बहुत सारे हमारे डेटास होते हैं जिसको हम लोग बल्क में रखते हैं. तो उस बल्क में डेटा को रखने के लिए हमारे पास कोई लोकेशन चाहिए स्टोरेज के लिए. तो वहाँ डिफरेंट टाइप ऑफ स्टोरेज है. प्रीमियम होता है, स्टैंडर्ड होता है, ब्लॉब स्टोरेज होता है, ब्लॉब होता है, पेज ब्लॉब होता है, फिर आपका टेबल होता है, क्यू होता है, और एक फाइल शेयर होता है. देयर डिफरेंट टाइप ऑफ स्टोरेज सर्विस अवेलेबल ऑन क्लाउड अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट. लाइक आपको चाहिए कि मेरे को सिर्फ कुछ अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को रखना है, देन वी यूज अ टेबल स्टोरेज अकाउंट फॉर दैट. अगर आपके पास लगता है इफ यू हैव लॉट्स ऑफ मैसेजेस एंड देन यू वांट लेट देम डिस्कार्ड एंड आप चाहते हो कि सबको एक यू वांट टू प्रोसेस ऑल ऑफ देम, देन दैट टाइप ऑफ थिंग्स वी विल स्टोर इन द क्यू स्टोरेज. सो ऐसे बहुत सारे स्टोरेज के सर्विसेज होते हैं जो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम लोग अपने सर्विसेज में यूज करते हैं. फिर आता है हमारा ट्रैफिक मैनेजर्स आता है, लोड बैलेंसर्स आते हैं हमारे, कि मान लें कि आपकी एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन की आप हाई एबिलिटी डिफाइन करोगे, तो हाई एबिलिटी कैसे होगा? जैसे आपके लोड बैलेंसिंग हो गया, एप्लीकेशन गेटवे हो गया, ट्रैफिक मैनेजर हो गया, ये फ्रंट डोर हो गया, ये बहुत सारे लोड बैलेंसिंग के सर्विसेज जिसके कारण आप एप्लीकेशन की हाई एबिलिटी डिफाइन करते हैं. देन आता है हमारा बैकअप. अब हमारा वीएम चल रहा था, हमारा वीएम के लिए एसएलए डिफाइन होता है कि भाई आपकी अप टाइम क्या होगी, डाउन टाइम कैसे वर्क. मान लीजिए कि आपकी रनिंग वीएम क्रैश हो गई, आप कितनी कम से कम समय में उसको अप कर सकते हो, दैट वी कॉल इट बैकअप्स. और इस बैकअप, ये हमारा बैकअप सर्विस होता है, ये हमारा क्लाउड की बैकअप लेता है. इवन इट इज कैपेबल फॉर टेकिंग द बैकअप ऑफ योर ऑन प्रीम डिवाइसेस आल्सो. आपके कोई मान लीजिए आपकी एप्लीकेशन फोल्डर है, आप किसी सिस्टम पे हो, कोई एक्सीडेंटली आपके फोल्डर को डिलीट कर दिया, तो फोल्डर की भी हम बैकअप कर सकते हैं बैकअप से, Azure बैकअप से. कोई स्पेसिफिक फोल्डर हो गया, जैसे कोई आपकी एप्लीकेशन है रन कर रही है जिसमें कुछ आपका इंपॉर्टेंट डेटा आके सेव होता है, जिसको आप बहुत क्रूशियल है, जिसका आप लॉस नहीं कर सकते. मान लो कि डाउन हो गया तो एटलीस्ट अगर डेटा का बैकअप चाहिए होता है, तो आप डेटा का बैकअप भी, एक फोल्डर का बैकअप भी आप यहाँ से कॉन्फ़िगर कर सकते हो. देन आता है एक्टिव डायरेक्टरी आती है, जिसमें सारा चीज आप मैनेज कर सकते हो. आपकी कस्टम एप्लीकेशन, बिजनेस एप्लीकेशन, ब्रांडिंग आती है, यूजर्स होते हैं, फिर आपकी ऐप प्रॉक्सीज. देयर लॉट ऑफ फीचर गिवन इन द एक्टिव डायरेक्टरी. नाउ माइक्रोसॉफ्ट इज एडिंग न्यू फीचर ऑन डे टू डे बेसिस. ये बहुत सारी चीजें हैं, और इसके अलावा भी बहुत सारे वेब ऐप होते हैं. वेब ऐप भी पढ़ेंगे हम लोग, डेटाबेस पढ़ेंगे, फिर इसका हमारा क्यूबरनेटिस का थोड़ा बहुत बता दूंगा, फिर सिक्योरिटी के पर्पस से बताएंगे, इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन आते हैं, वो सारी चीजें इसमें आपकी कवर हो जाएगी. अगर आप क्लाउड की बात करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग विद द क्लाउड कंप्यूटिंग होता है क्या? क्लाउड एक जस्ट लाइक एज व्हाट यू आर यूजिंग ऑन प्रीम डेटा सेंटर, दैट इज अवेलेबल ऑन क्लाउड. ये क्लाउड तीन तरीके का होते हैं, एक पब्लिक होते हैं, प्राइवेट होते हैं, एक हाइब्रिड होते हैं. इफ यू टॉक अबाउट द पब्लिक, दैट्स मीन everything that is Azure, AWS, IBM, these are the public cloud provider. Private, that जो आप अपने ऑन प्रीम डेटा सेंटर्स में डेटा सेंटर बनाते हो, दैट वी कॉल इट प्राइवेट. जब आप ऑन प्रीम और डेटा सेंटर और क्लाउड दोनों पब्लिक क्लाउड को, प्राइवेट और पब्लिक क्लाउड का कॉम्बिनेशन यूज करते हो, दैट वी कॉल इट अ हाइब्रिड क्लाउड. लाइक आप बहुत सारे हमारे पास ऐसे प्रोजेक्ट्स के रिक्वायरमेंट आते हैं डिजाइनिंग के लिए कि दे वांट टू होस्ट देयर एप्लीकेशन, बट दे डोंट वांट टू मूव योर डेटा आउटसाइड देयर ऑर्गेनाइजेशन. अपना डेटाबेस अपने ऑर्गेनाइजेशन में ही रखना चाहते हैं. फॉर दैट वी हैव टू रिकमेंड देम टू गो विद द हाइब्रिड क्लाउड मॉडल. उसमें क्या होता है कि हम एक कनेक्टिविटी बना देते हैं ऑन प्रीम से क्लाउड के बीच में. उसमें हमारा एप्लीकेशन हमारा क्लाउड पे रहता है और डेटाबेस हमारा ऑन प्रीम रहता है, जिसके थ्रू ये चलता रहता है. ये डिफरेंसेस क्या है? लाइक इफ यू वांट टू से व्हाट द डिफरेंस बिटवीन ऑन प्रीम एंड क्लाउड कंप्यूटिंग. अगर लेट्स गिव एन एग्जांपल, लेट मी आस्क यू क्वेश्चन. अगर आपको बोला जाए कि एक वेब एप्लीकेशन होस्ट करनी है, सो व्हाट्स योर रिक्वायरमेंट एंड व्हाट यू डू, व्हाट्स योर रिक्वायरमेंट फॉर होस्टिंग एन एप्लीकेशन? जस्ट गिव मी एन आइडिया ऑन दिस. If you are to if I told you to host a web application on your on prem,
वेबसाइट का आपको एक होता है डेटाबेस हम अपलोड करते हैं। नहीं, अपलोड करने के पहले आपको उससे पहले बहुत सारी चाहिए। आपको सर्वर चाहिए, विंडोज के लिए सर्वर के लाइसेंस चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, पावर सप्लाई चाहिए, एक बंदा चाहिए, देन ओएस चाहिए, देयर लॉट ऑफ थिंग रिक्वायर्ड ऑन दैट। बट क्लाउड में क्या आता है कि यू डोंट हैव टू डू विद दैट। इफ यू वांट समथिंग, आप हमारे पास आओ, आपको 2 घंटे के लिए सर्वर चाहिए, वी विल प्रोवाइड यू फॉर 2 आवर्स। आपको 2 घंटे की ही बिलिंग देनी है, और जो इतनी जगह चाहिए उतने चाहिए। अब मान लो कोई नई कंपनी स्टार्ट कर रहा है, तो अब कोई नया डेटा सेंटर स्टार्ट करने में that's a very huge investment. कोई कंपनी अब उसमें लगाना नहीं चाहता। For that, most of them are going towards the cloud, क्योंकि ये सस्ता भी है और easily और highly availability है। और मान ले कि if your customer is in US, so आप US में तो डेटा सेंटर नहीं होता, you can just simply choose the cloud center that is hosted in US and you host the application in that region. इसमें आपकी इन्वेस्टमेंट का हार्डवेयर कॉस्ट कम आएगी, आपकी मैनेजेबिलिटी कम आएगी, बहुत सारे हो गए। मैनेजेबिलिटी की बात आते हैं तो वो कहाँ से देखेंगे, अब हम इस मॉडल में देखेंगे। ये हमारी प्रोविजनिंग और अंडर प्रोविजनिंग की भी है, सारे स्टार्ट्स हैं, वो सारा इसमें है। सबसे पहले बेनिफिट्स क्या होता है, एक सबसे पहले बताया कॉस्ट। आपकी जो पहले इनिशियल कॉस्ट होती है वो बच जाती है। ग्लोबल स्केलिंग हो जाती है कि मान लीजिए कि आपने डेटा सेंटर इंडिया में है बट आपका कस्टमर यूएस में है। अब अपनी उसकी एप्लीकेशन आप इंडिया में होस्ट करोगे, ऑब्वियस सी बात है थोड़ी बहुत तो लेटेंसी आएगी नेटवर्क में। तो अगर वही आपकी उसकी एप्लीकेशन आप यूएस में होस्ट कर दोगे तो ही माइट फेस अ वेरी फ्यू लेटेंसी, और ना के बराबर लेटेंसी मिलेगी उसको, तो आपकी एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस बन जाती है। ये आपके पास फैसिलिटी मिल जाती है ग्लोबल स्केलिंग में। एक तो आपकी प्रोडक्टिविटी बन जाती है, जिसमें आपका अगर आपके पास हार्डवेयर मैनेज ही नहीं करना, आपके पास लाइसेंसिंग, बैकअप एंड अदर थिंग को मैनेज ही नहीं करना है, इवन आप वो जो काम उधर आप लगाने वाले तो वो प्रोडक्टिविटी आप कहीं और लगाओगे, जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। परफॉर्मेंस, आप क्लाउड पे जाते हैं तो आपको लेटेस्ट और हाईली अवेलेबल फीचर्स मिलते हैं, तो आपकी परफॉर्मेंस भी जाती है। रिलायबिलिटी इसमें बहुत सारे, बैकअप है, डीआर है, बिजनेस कंटिन्यू, बीसीडी प्लान है, बिजनेस कंटिन्यू प्लान, बीसीपी प्लान बोलते हैं, बहुत सारी चीज में रिलायबिलिटी है ये, और हाइब्रिड कैपेबिलिटी, ये सारे बहुत सारे बेनिफिट्स हैं आपके क्लाउड के। 3 मॉडल मैंने बताया टाइप्स ऑफ क्लाउड कौन से थे, इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस, प्लेटफॉर्म एज सर्विस, सॉफ्टवेयर एज सर्विस। ये 3 मॉडल्स क्या होते हैं, इस डायग्राम में आप को क्लियर हो जाएगा। जैसे अगर आप ये देखोगे तो इस मॉडल में लाइक एप्लीकेशन डेटा, जैसे आप कोई एप्लीकेशन देख रहे हो, अगर ऑन प्रीम में हो तो आपको नेटवर्किंग भी आप ही देखोगे, स्टोरेज भी आप देखोगे, सर्वर भी आप देखोगे, वर्चुअलाइजेशन, ओएस, मिडलवेयर, रन टाइम, डेटा, एप्लीकेशन, सब चीज आपको मैनेज करना है। बट आप क्लाउड पे आते हो, अगर आईएस सर्विस सेलेक्ट करते हो तो आप माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड बोलता है कि आप नेटवर्किंग, स्टोरेज, सर्वर, वर्चुअलाइजेशन आप हमारे पे छोड़ दो, बाकी आप ओएस मैनेज करो, बाकी ऊपर का एप्लीकेशन मैनेज करो। दैट वी कॉल इट इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस। फिर उसका आता है पैस, आता है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस बोलते हैं, इसमें बोलता है कि आपको ओएस की जिम्मेवारी भी नहीं लेनी है, जिसमें आप सिर्फ अपना कोड डालो और अपना काम कर लो। आपको ओएस कौन सा ओएस रन करना है, क्या रन करना है, कौन सा डेटाबेस है, वो सब वो ऑटोमेटिकली वो डिटेक्ट करना है। इसमें हमारा बैकअप होता है, सर्विस फंक्शन होते हैं, पावर, बहुत सारे इसके पैस सर्विसेज है अवेलेबल क्लाउड में। फिर आपकी आती है सॉफ्टवेयर सर्विस, लाइक O365 हो गया, शेयर पॉइंट ऑनलाइन है, इसमें सिर्फ आपको अपना सब चीज वो देता है, सिर्फ अपना डेटा डालो और काम करो। एप्लीकेशन भी मैनेज करता है, जैसे शेयर पॉइंट ऑनलाइन, जिसमें से आपको शेयर पॉइंट का मैनेज भी करना है, बस अपना डेटा डालो, मैनेज करो, वो हो गया हमारा SaaS मॉडल बोलते हैं हम लोग। अब Azure क्या है, Azure इज Azure एक माइक्रोसॉफ्ट का प्लेटफॉर्म है, दैट इज पब्लिक क्लाउड, और ये माइक्रोसॉफ्ट अपने को देता है, इसमें बहुत सारे फीचर्स है, बिजनेस लॉजिक्स लिखे रहते हैं, रिसोर्स है, प्रोविजनिंग है, बहुत सारी चीजें रहती हैं Azure के बारे में। पहले हमारे पास जब हम लोग माइक्रोसॉफ्ट जब 2009 में स्टार्ट हुआ था तो उसके पास ASM पोर्टल था। नाउ इन 2014 Microsoft retired that portal and introduced a new portal that's called ARM, Azure Resource Management Portal। ये हमारा, इसमें बहुत सारे फीचर्स है, ये जस्ट लाइक आपको ओवरव्यू के लिए बता दिया जा रहा है, इसकी कोई रिक्वायरमेंट होती नहीं है, जस्ट बताइए एज अ बैकग्राउंड हिस्ट्री में बता रहा हूँ कि ये होता है इसमें, ये सारे डिफरेंसेस है, उसमें क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं ASM ARM के। फिर आते हैं रिसोर्स ग्रुप होता है, ऐसे हम लोग आपके Azure में अगर हम लोग कुछ भी बनाते हैं तो उसके लिए सबसे पहले हमें एक रिसोर्स ग्रुप बनाना पड़ता है। रिसोर्स ग्रुप होता क्या, जस्ट लाइक एज अ लॉजिकल और वर्चुअल बाउंड्री होती है। लाइक आपके पास आपकी कंपनी में आपका एक सब्सक्रिप्शन है, वहां पे आपकी एक सर्वर है, वेब की अलग है, डेटाबेस की अलग है, एप्लीकेशन है, या फिर आपके HR हो गया, फाइनेंस हो गया, IT हो गई। आपको मान लीजिए आपने क्लाउड पे रखा, आपने एक ही रिसोर्स ग्रुप में सारा चीज आपने प्रोविजन कर दिया, तो आप यह आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल हो पाया कि भाई आपकी HR की कौन सी है,
सर्विसेज कौन सी है, आईटी कौन सी है, फाइनेंस की है, और उसमें आप बिलिंग में भी दिक्कत होगा, तो उसके लिए क्या करते हैं, लॉजिकल बाउंड्री क्रिएट करते हैं कि ओके एचआर के सर्विस, एचआर के रिसोर्स ग्रुप ये है, जितने एचआर के सर्विसेज और एचआर के जितने सर्वर्स होंगे इस ग्रुप में होगा। उससे क्या होगा कि एचआर की अगर बिलिंग निकालनी है, आप एचआर के सर्विस की बिलिंग कितना है सीधे टैग पकड़ो एचआर का और उसकी बिलिंग निकाल के दे दो। यहाँ से बहुत सारे बेनिफिट होते हैं, ये आपको मैनेजेबिलिटी के लिए आसान हो जाता है रिसोर्स ग्रुप। ऐसे ऐसे बहुत सारे फीचर्स क्लाउड में होते हैं। इसके अलावा इफ आई टॉक अबाउट होटल या अभी सर अभी हमारा क्या है, हाँ हमारी जो कंपनी है, हम वेबसाइट डेवलपमेंट करते हैं, हमारे प्रोडक्ट बना रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट का 365। तुम करो। हेलो, ये पूर्वेश, माइक्रोसॉफ्ट का 365 डायनामिक्स का एक सॉफ्टवेयर, राइट? उसमें एक सीआरएम दोनों आते हैं। एक सीआरएम, हाँ जी। और उसके बिटवीन क्या है कि सीआरएम के अंदर कॉमन डेटा सर्विस करके एक डेटाबेस है, राइट? और हम जो कोड बना रहे हैं, राइट, वो है PHP एंड एंगुलर साइड, और बैकएंड में है MySQL डेटाबेस। ओके, राइट? तो हम अभी क्या करना चाहते हैं, हम जो MySQL डेटाबेस है, राइट, उसको माइग्रेट करके SQL में लाना चाहते हैं, जिससे क्या होगा कि हमारा जो एप्लीकेशन बन रहा है, राइट, हम डायरेक्टली यूज कॉमन डेटा सर्विस के साथ कर सकें, राइट? तो इसके हमारा जो पूरा सिस्टम है, राइट, उसके अंदर मल्टीपल टेनेंट है, हर एक टेनेंट के अंदर मल्टीपल लीगल एंटिटीज है। मैं आपको एक फ्लो बता रहा हूँ, राइट? हमारा जो है, हम कैसे हमारा पूरा वैसा सेटअप करना है। हम जो ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, राइट, वो कोई सर्टिफिकेट ट्रेनिंग क्लास के लिए ऐसा ट्रेनिंग नहीं लेना चाहते। मैं फ्रैंकली अभी स्टार्टिंग में बता देता हूँ कि जो भी मैं बेसिकली जो आप बोल रहे हो दैट्स अ टोटली डिफरेंट थिंग जो आप करना चाह रहे हो, क्योंकि वो आउट ऑफ इस जो कोर्स कंटेंट है वो आप बहुत ऊपर की चीज पूछ रहे हो। उसके लिए आपको AZ104 होना चाहिए, AZ303 और 304 सर्टिफाइड होना चाहिए, तब जाके आप उस लेवल पे काम करने की बात बोल रहे हो। जब इंटीग्रेशन की बात आती है, AX की, आप ऑफिस 365 की Azure एक्टिव डायरेक्टरी से इंटीग्रेशन बोलते हो, तो वो अलग ही लेवल पे चला जाता है। नहीं, मैं अभी इंटीग्रेशन अभी हमें नहीं करना है। हमें क्या करना है, Azure के अंदर ऐसा सेटअप बनाना है जो माइक्रो वेबसाइट होस्ट कर सके, राइट? एक में आप कैन यू स्टॉप योर स्क्रीन? यस श्योर। और आप लोग या that's it. देखो, इसमें हमारे पास एक वर्चुअल मशीन है, राइट? ये जो हमने ऐसे ही बनाया है, एक वर्चुअल मशीन के अंदर हमारी क्या मल्टीपल वेबसाइट होगी। वन काइंड ऑफ, देखो आप यहाँ पे ऊपर नहीं साइड XYZ। हाँ, स्टॉप। देखो, इसको थोड़ा सा साइज कम करना, नॉर्मल साइज बनाना, फुल स्क्रीन। या जस्ट अ सेकंड, थोड़ा सा बस लेफ्ट हैंड साइड को चाहिए था मेरे को, थोड़ा सा। बस what that is, that was in purple color. Yeah, this one. सब डोमेन मैं आपको बता रहा हूँ। अभी हम क्या करना है, एक वर्चुअल डोमेन एक वर्चुअल मशीन के अंदर, राइट, हमें मल्टीपल वेबसाइट होस्ट करनी है। लाइक इसका स्ट्रक्चर कैसा है, जो फर्स्ट वाला है xyz.com, राइट, दिस इज वन डोमेन, रेडी? उस डोमेन के अंदर क्या होगा कि हमारा सब डोमेन मल्टीपल सब डोमेन होंगे, राइट? और हर सब डोमेन के अंदर हम क्या करेंगे कि उसके अलग अलग डिफरेंट डेटाबेस रहेंगे सेपरेटली, राइट? तो उस हिसाब से हमें क्या करना है, Azure में सेटअप पूरा करना है। ठीक है। जैसे इसमें आपकी ये जो आपकी रिक्वायरमेंट है आपकी, तो फर्स्ट इसमें जो मैंने AZ104 मैंने कवर करूंगा, उसमें सबसे पहले आपको बताऊंगा कि भाई लोड बैलेंसर बनता क्या है, वर्चुअल मशीन होता क्या है, बनता क्या है, और इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या बनती है। अगर लोड बैलेंसर बना रहे हो तो लोड बैलेंसर काम कैसे करता है, किस पोर्ट पे काम करता है, और कैसे इसको क्रिएट करके उसको ऐड करते हैं। देन आते हैं मल्टीपल होस्टिंग।
मल्टीपल होस्टिंग कैसे होती है उसकी आप कैसे आप मैपिंग कर पाओगे वो डिफाइन होगा। फिर जो वेब ऐप आपने मेंशन कर रखा है, वेब ऐप की आप डेटाबेस जो बनाया, सिक्वल डेटाबेस बनाया, वो डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी कैसे डिजाइन करोगे वो मैं बता दूंगा। अब ये पूरा सेटअप जो आप बोल रहे हो ये मैं तो बना सकता हूँ, बट ये आउट ऑफ द, इसके लिए पूरा आपको आर्किटेक्ट लेवल पे जाना पड़ेगा। मैं इसकी सारी सर्विसेज बता दूंगा जितने आपने इसमें यूज हो रहा है, सारे सर्विसेज बता दूंगा कि कैसे क्या होता है, कैसे काम करता है, किस तरीके से काम करता है। ओके सर, एक क्वेश्चन था हाँ कि जी। ये जो हमने डायग्राम बनाया है पूरा फ्लो, ठीक है, एक वर्चुअल मशीन से पूरा ये सब हैंडल करना, मल्टीपल्स होस्टिंग और ये सब कोर्स में कवर होगा, राइट? नहीं, ये वर्चुअल मशीन से ये जो देखो आप, जस्ट अ सेकंड, समवन इज नॉकिंग द डोर, जस्ट गिव मी अ मिनट, यस, सॉरी फॉर दैट। ओके, नो प्रॉब्लम। Sorry to keep you waiting. Okay. Yeah, Hiren, you were asking something. यस, मैं इतना पूछ रहा हूँ कि ये अगर सिंगल वर्चुअल मशीन से हम मल्टीपल होस्टिंग करना चाहे तो ये कोर्स में इंक्लूडेड होगा या नहीं? मैं ये बता दूंगा कि आप सिंगल वर्चुअल मशीन पे मल्टीपल वेबसाइट कैसे होस्ट कर सकते हो, ये मैं बता सकता हूँ। और एक क्वेश्चन कि Yes, ये sure. जो मल्टीपल वेबसाइट है, हाँ। राइट, तो आई थिंक प्लेक्स होस्ट होता है, राइट, उससे साथ मैनेज होती है। सॉरी, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। ये जो मल्टीपल होस्टिंग की बात की ना, वो उसके थर्ड पार्टी से होती है या इसमें ही हो जाती है? अज्योर में आपको प्लेक्स करके एक होस्टिंग है वेबसाइट, एक प्लेक्स पैनल होता है, प्लेक्स अलग ही चीज हो गया। अज्योर में आप आईएस एक कैपेबिलिटी होते हैं। या आईएसएस। सर, योर वॉइस इज नॉट कमिंग। हेलो। या सॉरी, एक अगेन प्लेक्स पैनल अलग चीज होता है। इसमें एक फीचर होता है आईएस, जिसमें आपको कैपेबिलिटी होता है, आप अपनी एप्लीकेशन वहां होस्ट कर सकते हो, मल्टीपल एप्लीकेशन होस्ट कर सकते हो, सब चीज वहीं पे कर सकते हो। एक वीएम पे आप मल्टीपल एप्लीकेशन होस्ट कर सकते हो आप। तो ये जो मैंने बात की वो आप प्लेक्स से करवाओगे या किसी और तरीके से? आईएस के थ्रू नहीं, टोटली माइक्रोसॉफ्ट सर्विसेज यूजिंग, नो थर्ड पार्टी। ओके, जो भी हम लोग यूज करेंगे दैट्स ओनली अ माइक्रोसॉफ्ट सर्विसेज वी आर गोइंग टू यूज। मतलब ये AZ104 जो सर्टिफिकेट है उसमें सारा कुछ बेसिक्स का आ जाएगा अज़ूर का, और होस्टिंग आप बताओगे? हाँ, बेसिक्स कैसे करते हैं मल्टीपल होस्टिंग? हाँ, होस्टिंग मैं आपको बता दूंगा, अलग से बता दूंगा। एप्लीकेशन होस्टिंग कैसे होती है मैं बता दूंगा अलग से। ठीक है। और ये That I will अगर tell you ये how you host स्ट्रक्चर an की app. बात करें कि मल्टीपल वेब एप्लीकेशन है, उसमें अलग अलग टेनेंट्स है, उसके सारे अलग डेटाबेस है, ये आप जो बात बोल रहे हो ये हम लोग अचीव करते हैं क्यूबरनेटिस के थ्रू। क्यूबरनेटिस बेसिकली होता क्या है, उसमें हमारी एक मेन स्ट्रीम्स होती है जिसमें आपके मल्टीपल ब्रांचेस होते हैं। जैसे लाइक आपकी एक कंपनी है जिसमें आपसे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे फाइनेंस हो गया, आईटी हो गया, एचआर हो गया, देन एम्प्लॉयज हो गया, मार्केटिंग हो गया। अब उसमें क्या होता है कि हमारी एक कंपनी की वेबसाइट होती है, मान लीजिए इफ यू वांट टू चेंज समथिंग, अब उसमें अलग अलग हम लोग मल्टीपल सब होस्टिंग करते हैं, जैसे आईटी का हो गया, फाइनेंस हो गया, एचआर का हो गया, एम्प्लॉयज हो गया, मार्केटिंग सब का बनाते हैं। इफ यू वांट टू चेंज एनीथिंग इन समथिंग,
सो यू हैव टू ओनली चेंज दैट एरिया। उसके कारण क्या आपकी पूरी एप्लीकेशन पे इम्पैक्ट ना होगे, सिर्फ एक छोटे से आपके मार्केटिंग वाले जो आपकी एप्लीकेशन है उस पर सिर्फ वो इम्पैक्ट जाएगा। ये चीज हम लोग करते हैं थ्रू क्यूबरनेटिस और ये कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन के थ्रू यूज करते हैं। ये चीज हम लोग अचीव करते हैं। ये इससे ज्यादा बेनिफिशियल और ज्यादा एफिशिएंटली वो काम करता है। और ये कोर्स का टाइम? ऑन वीकेंड्स इट विल टेक 2 months। प्राइस क्या है? Price for that you have to get in touch with Hema. She will share you all the details about the price and things. Okay. आपने Q180 का बोला, उसका क्या? वो भी वो बताएंगे? Sorry? Kubernetes का? Kubernetes उसका बेसिक मैं बता दूंगा आपको। इसमें Kubernetes होता क्या है, कैसे कॉन्फ़िगर में क्या होता है वो मैं बता दूंगा। फिर उसका एडवांस आपका सॉल्यूशन आर्किटेक्ट वाले में आ जाता है। हाँ। Okay. तो आपके पास AZ104 या फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द बेसिक वन। जब बेसिक ही नहीं पता होगा तो फिर सीधे एडवांस लेवल पे जाने पे तो फिर हर चीज ऊपर से निकल जाएगी। ओके। एंड व्हाट अबाउट दिस DevOps? DevOps, that's a totally different course you have to go with. उसका अलग कोर्स है DevOps का। इसमें आपका CI/CD होते हैं, Azure पाइपलाइंस होते हैं, सारे चीज होते हैं उसमें। ओके। आप बेस पुणे हो या हैदराबाद? सॉरी, आप कहाँ से हो? कौन से बेस से? I'm from Delhi NCR. Delhi NCR. Yeah, Delhi NCR. Okay, so we'll continue. Okay. Okay. Yeah, that's all. अगर आपको कुछ और क्वेश्चंस हैं तो आप बताओ। बस यही है, मैं हमारा पूरा सेटअप कर दूंगा। हाँ नहीं देखो, मैं पढ़ाऊंगा तो मेरा 90% फोकस होगा प्रैक्टिकल पे rather than going with the theoretical। हर चीज मैं प्रैक्टिकली बताऊंगा करके, क्योंकि आपको भी पता रहे कि भाई Azure पे चल कैसे रहा और क्या हो रहा है। थियोरेटिकल पढ़ने के लिए तो बहुत सारे होते हैं, थियोरेटिकल पढ़ के बहुत से हो भी नहीं पाती है। इसलिए जो भी होगी 80 to 90% थियोरेटिकल होगी। कुछ 10% ऐसे चीजें जिसपे हमारी डिपेंडेंसी आ जाती है बहुत सारी चीजें की, वो नहीं हो पाती है। वो रियल टाइम जब इम्प्लीमेंटेशन होता है तभी हम दिखा सकते हैं। जैसे हमारी फायरवॉल की जैसे ऑन प्रीम से कंपनी की कनेक्टिविटी बनाना, तो उसके लिए कंपनी की फायरवॉल चाहिए जो हमारे पास होती नहीं है। तो बता दूंगा करते होते कैसे हैं, बस आपको उसमें वैल्यूज डालने, दैट्स ऑल डन। उसका ओवरव्यू दे दूंगा क्या होता है, दैट्स ऑल डन। ऐसा नहीं कि वो स्किप होगा, वो सारा चीज बताते हुए चलूंगा। जहां पे कुछ लिमिटेशन आती है तो वहां दिक्कत आ जाएगी। ओके, थैंक यू। ठीक है, ओके, थैंक यू। ओके।